Good morning, BSc Nursing third year students. Today we are going to discuss about types of sampling. In previous lecture we have discussed about the sampling. So what is sampling? Sampling is the process of selecting a representative part of the population. So what we have done under sampling is a representative, sampling is a process in which we select the representative unit or representative sample and from the entire population under investigation for a purposeful study. Thus, a carefully carried out sampling process helps to draw a sample that represent the characteristics of the population from which sample is drawn. So sample is a representative unit of the population. So with the help of sampling technique, we select the sample under a process so that sample represent the characteristics of the entire population. ਸੋ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਟਾਇਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੋਰੇਜ। So there are the several methods or techniques of sampling. However, basically sampling technique are classified into two broad categories. So types of sampling ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਟੂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼. First is probability sampling and second is non-probability sampling. So under probability sampling we will discuss about the further 5 subtypes of probability sampling. So first is the simple random sampling, second is stratified random sampling, and third is systemic random sampling, and fourth is cluster or multi-stage sampling, and fifth is sequential sampling. So we will discuss one by one probability sampling. So what do you mean by probability? So probability means equal chance to be selected. Means ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਹੋਏਗਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਂਪਲ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। So probability sampling technique. So definition of probability sampling technique. Probability sampling technique based on the theory of probability. So it based on the theory of probability. Probability means each element has equal chance to be selected in the study. So probability sampling technique, for example, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਡ ਔਰ ਟੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ 50% ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈਦਰ ਹੈਡ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰ ਟੇਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ 50% ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਹੈਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਟੇਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਥਿਊਰੀ। ਮੀਨਸ ਈਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ, ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਂਪਲ. So probability sampling technique, it involves random selection of the elements, members of the population. Every subject has equal chance to be selected as study sample. The chance of the systematic bias is relatively less because subjects are randomly selected.
सो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग दे फीचर्स अपने को मेन की आ जाने आ। एक तो फर्स्ट फीचर आ गया कि आप जो सैंपल आ रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मीनस हर जिन्ने भी अपने को पॉपूलेशन दे विच परसनस है उन्होंने इक्वल चांस होंदा अंडर स्टडी सिलेक्ट होने का, ठीक है। एवरी सब्जेक्ट हैज़ इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड एज अ स्टडी सैंपल। नेक्स्ट द चांस ऑफ द सिस्टमैटिक बायस इज़ रिलेटिवली लैस बिकॉज सब्जेक्ट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये बायस होने के चांसिस जोड़े है वो बहुत घट होंगे हैं, ठीक है। क्योंकि आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कोई फेवरेटिज़म, ठीक है, या अनफेवरेटिज़म नहीं होएगा, ठीक है। रैंडमली जोड़े परसन का नंबर आ रहा, ठीक है, आप उस परसन को की करना एक स्पैसीफिक टेक्नीक के थ्रू आप वो नंबर जोड़ा है सिलेक्ट कर लेना फॉर अ स्टडी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्नीक इट बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मीनस हर सैंपल का हर सबजैक्ट का इक्वल चांस है स्टडी के अंडर सिलेक्ट होने का। सो नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सो फर्स्ट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दैन सेकंड इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, then systemic random sampling, cluster random sampling, sequential random sampling. So first is simple random sampling. So in this method the every member or each subject of the population has an equal chance of being selected as subject. सो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, ठीक है। मीनस ये सिंपल प्रोसैस है, हर एलीमेंट का इक्वल चांस होंदा सिलेक्ट होने का, ठीक है। सो प्री रिक्वेस्टिस और यूजेस। सो पॉपुलेशन शुड बी होमोजीनस, रिसर्च मस्ट हैव द लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द असेसिबल पॉपुलेशन। सो प्री रिक्वेस्टिस और यूजेस आ गए सिंपल रैंडम सैंपलिंग द फर्स्ट है इट शुड बी होमोजीनस, ठीक है। होमोजीनस मीनस जोड़ा अपने को पॉपूलेशन हैगी वो होमोजीनस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्टडी कर रहे हैं, लाइक आप एग्जाम्पल ले लो कि आप स्टडी करनी है नर्सिंग स्टूडेंट्स है जोड़े, ठीक है। और उन्होंने आप असैस करना उन्होंने नॉलेज असैस करनी है रिगार्डिंग UTI ले लो, ठीक है। UTI के रिगार्डिंग आप सैंपल्स उन्होंने नॉलेज सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हुण सिंपल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इन्होंने की किया इट शुड बी होमोजीनस, ठीक है। मीनस जो सैंपल अपना होमोजीनस होना चाहिए। होमोजीनस मीनस सेम करैक्टर होने चाहिए। लाइक अपने को BSc नर्सिंग सैकेंड ईयर आप अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी टारगेट पॉपूलेशन लै रहे हैं कि साडी BSc सैकेंड ईयर टारगेट पॉपूलेशन आ, तो होमोजीनस ग्रुप मीनस अपने को सारे स्टूडेंट किहड़ी क्लास के हो गए सैकेंड ईयर के, तो वो अपने को होमोजीनस करैक्टर आ गया। मीनस सारे स्टूडेंट अशोका नर्सिंग इंस्टीट्यूट के आप जो स्टूडेंट लै रहे हैं सिर्फ आप कि सिलेक्ट कर रहे हैं BSc सैकेंड ईयर, तो उन्होंने करैक्टर की है सारे स्टूडेंट सैकेंड ईयर विच स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एवं लीए कि एक ग्रुप आप सैकेंड ईयर चो ले लिया कुछ स्टूडेंट और कुछ स्टूडेंट थर्ड ईयर चो ले लिया, तो वो हेटेरोजीनस सैंपल हो जाएगा, ठीक है। होमोजीनस मीनस आप सेम करैक्टरिस्टिक के जोड़े सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दूसरी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि लाइक क्लास के बॉयज़ ने गर्ल्स ने, ठीक है, बट आप करते सिर्फ गर्ल्स सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना वो की हो जाएगा होमोजीनस सैंपल आ गया कि सेम करैक्टरिस्टिक्स की आप सैंपल पिक किया, ठीक है। सो रिसर्चर मस्ट हैव लिस्ट ऑफ द एलीमेंट ऑफ द असेसिबल पॉपूलेशन। सो रिसर्चर कोल मीनस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की होंगे कि रिसर्चर कोल जोड़ा एक लिस्ट होनी चाहिए पॉपूलेशन की, ठीक है। मीनस अपने को आप स्टार्टिंग फर्स्ट लैक्चर के जी अपनी पॉपूलेशन आ पॉपूलेशन आप एक टारगेट पॉपूलेशन सिलेक्ट करते हैं, दैन टारगेट पॉपूलेशन तो बाद आप असेसिबल पॉपूलेशन लेंदे सीगे, ठीक है। सो वट डू यू मीन बाय असेसिबल पॉपूलेशन। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई स्टडी कंडक्ट कर रहे हो अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स से, ठीक है, तो ये अपने को जोड़े पॉपूलेशन आ वो अपनी जिन्हें नर्सिंग स्टूडेंट अशोका इंस्टीट्यूट के अंडर विच स्टडी करते हैं वो सारी अपनी की होगी पॉपूलेशन होगी। टारगेट पॉपूलेशन केड़ी होगी, लाइक आप BSc के स्टूडेंट्स से BSc सैकेंड ईयर स्टूडेंट से अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है, तो अपनी टारगेट पॉपूलेशन केड़ी होगी BSc सैकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, ठीक है। और असेसिबल पॉपूलेशन अपनी केड़ी हो जाएगी कि जेडे स्टूडेंट उस दिन जिस दिन आपू सिंपल चाहिए आप सिंपल सिलेक्ट कर रहे हैं उस दिन जेडे स्टूडेंट क्लास के वो प्रेजेंट आ वो अपनी की होगी असेसिबल पॉपूलेशन। सो रिसर्चर को की होना चाहिए जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग करनी है तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग तो पहला असेसिबल पॉपूलेशन की वो लिस्ट होनी चाहिए है। लाइक कि BSc सैकेंड ईयर के स्टूडेंट जेडे उस दिन प्रेजेंट आ तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स की डिटेल प्रेजेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट रिसर्चर को
होनी चाहिए। ठीक है, ही मस्ट हैव द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द असेसिबल पॉपुलेशन। ठीक है, सो दीज आर द प्री रिक्वेस्टेज और यूजेस। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग मीनस ईच एलीमेंट का इक्वल चांस होंगे। ठीक है, सिलेक्ट होने का। ठीक है, प्री रिक्वेस्टेज की ने होमोजीनस होना चाहिए ग्रुप, और सैकेंड की है रिसर्चर को लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, इस जी अपने को आप लिस्ट की हुण गल कर रहे हैं कि अपने को जी सबजैक्ट्स की लिस्ट होनी चाहिए। इट ऑल्सो नोन एज सैंपल फ्रेम। ठीक है, मीन सैंपल फ्रेम अपने को होना चाहिए, स्टूडेंट्स की लिस्ट अपने को होनी चाहिए है। ठीक है, फॉर सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, रैंडम सैंपलिंग होने तो पहला ये दो चीज़ा अपन चाहिए ने, होमोजेनस ग्रुप और सैकेंड थिंग इज़ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट आ गया मैरिट्स, मैथड। सो सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंडर अपने को मैथड आ गया कि किहड़े मैथड के थ्रू आपां सैंपलिंग करनी आ। ठीक है, सो मैथड ये आ गया अपने को लॉटरी मैथड है। ठीक है, सैकेंड मैथड आ गया टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स एंड थर्ड इज़ यूज़ ऑफ कंप्यूटर। सो लॉटरी मैथड सबनों पता होएगा। ठीक है, आप सारे लॉटरी पाने, कोई लॉटरी का डिफरेंट नंबर होंगे। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ नंबर दे दें। ठीक है, तो डिपेंड करता लॉटरी लगती है कि जोड़ा नंबर लकी नंबर उन्होंने सिलेक्ट करना। ठीक है, तो लॉटरी हो गई। सेम इस हुण इत्थे आपां लॉटरी मैथड किवें यूज़ करते हैं। सो लॉटरी मैथड दे विच की करते हैं, इन दिस मैथड लॉटरी मैथड दे विच की होंदा, ईच मैंबर ऑफ द पॉपूलेशन इज़ असाइंड अ यूनीक नंबर। ठीक है, मीनस हर मैंबर नूं की होएगा एक यूनीक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एक यूनीक नंबर असाइन हो जाएगा। ईच नंबर इज़ प्लेसड ऑन अ बाउल और अ हैट एंड मिक्सड थॉरोली द नंबर। दैन उस तो बाद की होएगा, द ब्लाइंड फोल्डेड रिसर्चर दैन पिक्स द नंबर टैग्स फ्रॉम द हैट। ठीक है, हुण इहदे विच की होएगा, लाइक आपां जिवें पिछे एग्जाम्पल लई सीगी कि सैकेंड ईयर स्टूडेंट ते आपां रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपां हुण इस विच की करना कि जिन्ने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उस स्टूडेंट्स की एक आपां स्टूडेंट्स नूं एक नंबर असाइन कर देना। जिन्ने स्टूडेंट उस दिन प्रेजेंट है उन्होंने एक यूनीक नंबर असाइन कर देना। ठीक है, दैन उस नंबर तो बाद की करना, उस नंबर्स की आपां की बना लैणियां ने, चिट्स बना लैणियां ने। ठीक है, वो चिट्स नूं बना के की करना, एक हैट जां बाउल दे विच पा देना। ठीक है, दैन रिसर्चर उस दे विच की करेगा, उस तो बाद रिसर्चर ने उस हैट और बाउल दे विच ओह वन बाय वन नंबर दे जिहड़े हैगे आ नंबर दियां चिट्स जड़ियाँ हैगियां ने वो सिलेक्ट करनियां ने। ठीक है, तो हुण जिवें जिवें वो चिट्स निकली जाणगियां, ठीक है, वो वाले जिहड़े स्टूडेंट्स हैगे आ वो अपनी स्टडी दे अंडर सिलेक्ट हो जाणगे। ठीक है, दिस इज़ अ लॉटरी मैथड। ठीक है, मीन सिंपल रैंडम सैंपलिंग दे विच फर्स्ट मैथड जिहड़ा अपना आ गया कि आपां लॉटरी मैथड के थ्रू अपना जिहड़ा सबजैक्ट हैगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नैक्सट आ गया टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। ठीक है, सो सैकेंड कंडीशन दे विच अपने कोल की आ जाता कि आपां जिहड़े अपने कोल सबजैक्ट्स हैगे, ठीक है, उन्होंने आपां एक नंबर असाइन कर देना तो एक टेबल ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो उस टेबल दे विचों आपां की करने हैं, जिहड़े नंबर हैगे वो सिलेक्ट कर लांगे। ठीक है, द यूज़ ऑफ टेबल ऑफ रैंडम नंबर ये करना, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली एंड एक्यूरेटली यूज मैथड इन द सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सो ये आप करना, एक टेबल लैना, टेबल ते आप करना नंबर्स ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, सो रिसर्चर ने की करना, एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है एलीमेंट्स की। ठीक है, अपनी पॉपूलेशन की। फिर उस तो बाद लाइक जिवें आपां लॉटरी मैथड दे विच कर रहे सी ब्लाइंड फोल्ड दे नाल। ठीक है, उन्हें की करना कि रैंडमली वो नंबर सिलेक्ट कर लेने। ठीक है, जोड़ा नंबर सिलेक्ट हो गया, ठीक है, पिक हो गया, जोड़ा नंबर चूज़ हो गया, उस नंबर में उन्हें एज आ अपना जोड़ा सबजैक्ट हैगा उन्हें यूज़ कर लेना। ठीक है, ओके, थर्ड इज़ यूज़ ऑफ कंप्यूटर। सो यूज़ ऑफ कंप्यूटर आपां किहड़े केसिस दे विच यूज़ करते हैं, अगर इन केस अपने कोल जिहड़ा पॉपूलेशन हैगी है जां अपना असैसीबल पॉपूलेशन हैगी है, ठीक है, उहदा नंबर बहुत ज़्यादा हैगा। ठीक है, तो आपां उस केस दे विच की करते हैं कि आपां कंप्यूटर मैथड यूज़ करते हैं। कंप्यूटर दे विच आपां की करते एक टेबल तैयार कर लैंदे, उस टेबल दे विच आपां
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸੀਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਨਲਿਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਸਿੰਪਲ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਈਚ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੱਡੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦ ਰਿਸਰਚਰ ਮਸਟ ਹੈਵ ਲਿਸਟ ਆਫ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਅਸੈਸੀਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡ ਆ ਗਏ ਸੀ 3 ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਲੋਟਰੀ ਮੈਥਡ, ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ table of random numbers, and third is use of computer. So next is merits, or there are some merits or demerits of this method. So first merit is so merits of simple random sampling. So first merit is it is the most reliable and unbiased method ठीक है। इस मैथड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਇਸਨੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਮੋਸਟ ਰਿਲਾਇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਸਨੈਸ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿਉਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਵਰਟਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਟ ਆ ਗਿਆ ਈਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ